Assalamu alaikum dear students. Welcome in this online lecture of English. I hope this video reaches you in good health and spirit. Today we will study the remaining part of our lesson using scientific method. Third heading of our lesson is more food and better food. Changes have taken place too in our eating habits. Through the use of science, we have learned that it is healthful to eat many kinds of food, and we have learned how to provide ourselves with a variety of foods throughout the year. People who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today, but they could not have as many different kinds of food. Most of their foods had to be produced on their own farms or in their own gardens. Since fresh vegetables could be obtained only during the growing season, people living in cold climates had none during the winter months. साइंसी तरीकाकार ने हमारे खाने पीने की आदत को भी तब्दील कर दिया है। साइंस के इस्तेमाल के ज़रिए हम सीख चुके हैं कि कई इकसाम की खुराक खाना सेहत बख्श है और किस तरह हमें ये ग़िज़ाएँ सारा साल खुद को फराहम करनी हैं। लोग जो एक सदी पहले रहते थे मुमकिन है इतने ज़्यादा खुराक से लुत्फ़अंदोज़ ना होते हैं जितने के हम होते हैं। इसके अलावा उनको मुख्तलिफ़ इकसाम की खुराक पूरा साल मिल भी नहीं पाती थी। इनकी ज़्यादातर ग़िज़ाएँ इनके अपने खेतों या इनके अपने बागात में पैदा की जाती थीं और ये ग़िज़ाएँ भी जस्ट ग्रोइंग सीज़न में obtain की जा सकती थी। तो जब विंटर सीज़न आता था तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ वही होता था जो उनकी थ्रिफ्टी वाइफ्स ने सेव कर लिया हो। Thrifty housewives preserved their home-grown vegetables and fruits by canning, pickling, or drying them for use during the cold weather. Meats were preserved by salting and drying or by freezing when the weather was cold enough. Seafood were generally available only along the coast. Fish and shellfish could be eaten soon after they were caught. कवायद शार ख़वातीन खाना अपने घर की उगी हुई सब्जियों और फलों को डब्बों में बंद करके अचार डालकर या उन्हें खुश्क करके सर्द मौसम के दौरान इस्तेमाल के लिए महफूज करती थी। ये उनके लिए फूड प्रिजर्वेशन के मेथड थे। गोश्त को नमक लगाकर और खुश्क करके जब मौसम काफ़ी सर्द होता तो जमा कर महफूज कर लिया जाता। इसके अलावा समुद्री ग़िज़ाएँ सिर्फ साहिल के पास मिल सकती थीं और मछली और केकड़े पकड़े जाने के फ़ौरन बाद खाए जा सकते थे। Regardless of where people live today, they can obtain some fresh fruits, meats and vegetables throughout the year. By the quick freeze method, vegetables, fruits, seafoods and meats of various kinds can be preserved so that they are both nutritious and enjoyable. आज लोग जहाँ भी नज़र आते हों इन्हें सारा साल कुछ ताज़ा फल, गोश्त और सब्जियाँ मिल जाती हैं। तेज़ी से फ्रीज़ कर देने वाले तरीक़ाकार के ज़रिए मुख्तलिफ़ इक़साम की सब्जियाँ, फल, समुद्री ग़िज़ाओं और गोश्त को इस तरह महफूज किया जाता है कि वह ग़िज़ाइयत से भरपूर रहें और मज़ेदार रहें। Dear students, modern methods of selecting, grading and processing foods have removed the risk or danger of poisoning from canned foods, dehydration or the removal of water from such foods as milk, eggs, potatoes and apples has proved a practical method of preservation. हमारे खराब को महफूज करने के तरीके भी बदल गए हैं। चुनाव, दर्जाबंदी और ग़िज़ाओं को ख़ास अमल से गुजार कर महफूज करने के जदीद तरीक़ों ने डब्बों में बंद ग़िज़ाओं के ज़हर आलूद होने के ख़तरे को कम कर दिया है और इस कीमियाई अमल से खुराक से पानी खुश्क करना या दूध, अंडे, आलू और सेब जैसी ग़िज़ाओं से पानी को ख़त्म करने का तरीका खुराक को महफूज करने का एक अमली तरीका साबित हुआ है जिससे कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। Our eating habits are not the only things in our lives changed by the use of science. Because we have used science to learn more about the processes and materials in our surroundings and about the methods of controlling them, we have been able to improve our ways of building houses, our methods of communication and transportation, and even the use we spend our leisure time.
साइंसी तरीकाकार ने हमारी ज़िंदगियों में हमारी खाने पीने की आदत को ही नहीं बदला, बल्कि और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि साइंस के इस्तेमाल ने बदल दी हैं। हम साइंस को अपने गिरदोनवा में मौजूद अवामिल और मवाद से मुतल्लिक और इनको काबू रखने के तरीक़ों से मुतल्लिक मज़ीद सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हम अपने मकान की तमीर के तरीक़ों, अपने ज़राए मवासलात और आमदोरफ़त के तरीक़ों और यहाँ तक अपने फ़ुर्सत के लम्हात गुजारने के अंदाज़ को भी बेहतर बनाने के काबिल हुए हैं। किस वजह से? साइंटिफिक तरीक़ाकार की वजह से। मीन्स आज हमारी लाइफ में जो कुछ भी पॉसिबल है, हमारी लाइफ जितनी ईजी है, जितनी कंफर्टेबल है, ये सब साइंटिफिक मेथड ने पॉसिबल बनाया है। The last heading of our lesson is better attitudes. By an attitude we mean the way we feel towards some idea or some event. If a person believes that wearing some kind of charm will prevent him from having bad luck, he will wear the charm and will feel comfortable without it. बेहतर रवैये। साइंस ने हमें बेहतर रवैये डेवलप करने में भी मदद दी है। रवैये से क्या मराद है? रवैये से हमारी मराद वो अंदाज़ है जिससे हम किसी ख्याल या किसी वाक़ये को महसूस करते हैं। जैसे कि अगर कोई शख्स ये यकीन रखता है कि किसी किस्म का तवीज़ पहनना इसे बदकिस्मती से बचाएगा, तो वो तवीज़ पहनेगा और इसके बगैर बेचैन रहेगा। Dear students, feelings which involve fears such as this are called superstitions. Superstitious people believe in signs of good and bad luck, and their lives are greatly influenced by such signs. इस किस्म के एहसासात जिनमें खौफ शामिल हो सुपरस्टिशंस कहलाते हैं, मीन्स तोहमात कहलाते हैं। तोहम परस्त लोग अच्छी या बुरी किस्मत की निशानियों पर यकीन रखते हैं और इनकी जिंदगियां ऐसी अलामात से बड़ी हद तक मुतासिर होती हैं। Superstitious beliefs are being overcome by using the scientific method to demonstrate that there is no sound basis for them. Few people believe today that diseases are caused by evil spirits. Through astrology and fortune telling are still practiced, they do not influence the lives of as many people as they once did. It has been learned that there is always a good manual reason for everything that happens. To people, as a result, most people no longer fear black cats, broken mirrors, and the number 30. साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल से तोहम प्रस्ताना अकायद ये साबित करने के लिए दबाए जा रहे हैं कि इनकी कोई ठोस बुनियाद नहीं है। इसी वजह से आज बहुत कम लोग ये यकीन रखते हैं कि बीमारियों का सबब बुरी रूहें हैं। अगरचा इल्मे नजूम और मुस्तकबिल का हाल बताना अभी तक राइज है, मीन्स अभी भी ये सब होता है, लेकिन अब इतने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर नहीं करते जितना कि पास्ट में करते थे, क्योंकि यह मालूम हो चुका है कि लोगों के साथ जो कुछ पेश होता है उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि लोग अब काली बिल्लियों, टूटे हुए आईनों और 13 के हिंसे से खौफ नहीं खाते, वरना पहले दौर में 13 का जो हिंसा था उसको अनलकी समझा जाता था। कैट अगर आपका रास्ता क्रॉस कर जाए तो मीन्स आपके साथ कुछ बुरा होगा। इसी तरह जो ब्रोकन मिरर था वो भी कुछ बुरा होने की सिंबल थी कि बस आज कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। By the scientific method, it has been demonstrated that ideas are not necessarily true because they have been believed for a long time. Ideas must now be supported by facts in order to be acceptable to the scientists or to people who use the scientific method. The discoveries of scientists have helped people develop an attitude of open-mindedness. They are most willing to look for new truths than to assume that what has been considered true will always be true. Because people have had to change their old ideas as a result of new discoveries made by scientists, they are less likely to accept conclusions as final. साइंसी तरीकाकार से ये बात भी साबित हो चुकी है कि हालात को सिर्फ इसलिए ज़रूरी तौर पर ठीक कहना कि इन पर एक लंबे अरसे तक बिलीव किया जाता था, हमारे फोर फादर्स के लिए वो आइडिया सही था, हमारे एंसेस्टर्स के लिए वो आइडिया सही था, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साइंसदान या उन लोगों के लिए जो साइंसी तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं वही चीज़ काबिल कबूल है जो फैक्ट्स पर बेस्ड हो। अगर कोई चीज़ फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है तो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। इस तरह से साइंटिफिक डिस्कवरीज ने हमें ओपन माइंडेड बना दिया, हमारी थिंकिंग को क्रिटिकल कर दिया। ये सब पॉसिबल हुआ है साइंटिफिक मेथड की वजह से। सो थैंक्स टू साइंटिफिक मेथड।
Dear students, we have completed our second lesson of Book 2. Prepare these questions. If you have any other query, you can ask. That's all for today. Goodbye.